সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো, একটা ওই শর্টকাট রুল বলে দিয়েছিলাম, মনে আছে? কি বলেছিলাম? এখানে দেখো 10% কি হচ্ছে, প্রথমে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এখানে 10% কমে যাচ্ছে, মানে প্রথম তারপরে কমে যাচ্ছে, সেখানে যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে সেটা আমরা জানবো। তাহলে আমরা এক্স এর জায়গায় কি বসাচ্ছি? 10 প্লাস 10, এখানে কি বসাবো? মাইনাস 10 প্লাস 10 ইনটু, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এই দুটো কেটে যাচ্ছে, আর এখানে প্লাস মাইনাসে মাইনাস কত হবে, কত পড়ে থাকবে? মাইনাস। তার মানে কি হচ্ছে, -1, মানে -1% কথাটার অর্থ কি? ইয়েস, এই কথাটার অর্থ হচ্ছে 1% কমে যাবে। আর মাইনাস লেখার দরকার নেই, এই মাইনাস কথাটার মানেই হচ্ছে কমে যাওয়া। আর যদি এখানে প্লাস হতো তাহলে আমরা বলতাম বেড়ে। दोस्तों, ये जितना स्टूडेंट है आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इनसे मैं उनका जो है स्टूडेंट लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं इनको पूछना चाहूँगा। आप खड़े हो जाइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शेख मुश्ताक। अच्छा, घर कहाँ है आपका? पूर्व बर्धमान। वर्धमान में है इसका घर। ये आपको कितना दिन हो गया यहाँ पे? 5 महीना। 5 महीना हो रहा है इसको। आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, यहाँ पे कैसा क्या कराया जाता है, कोचिंग कैसा सर लोग कराते हैं, और आपका जो है खुद का एक्सपीरियंस आप बताइए। यहाँ पर कोचिंग बड़ी अच्छी तरह से कर जाती है। यहाँ पर 2 सर रहते हैं यहाँ पे। एक तो सर जो रहते हैं जीके कराते हैं, तो सारा टोटली जीके कराते हैं, और एक सर हैं वो इंग्लिश और मैथ कराते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर होता है। और सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, यहाँ पे सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी हो सकता है। यही सर। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। बैठो। यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, तो ये नीलिमा यादव, आप खड़े हो जाइए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए यहाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जोर से बोलिए थोड़ा सा। यहाँ सर अच्छे से पढ़ाते हैं, और सर 2 सर हैं जो अच्छे से, एक सर जीके और साइंस और जियोग्राफी सब कराते हैं, और एक सर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब कराते हैं। बहुत अच्छा से हम लोग को पढ़ाते हैं। और यहाँ पे आप एसएससी, जीडी, पुलिस, वेस्ट बंगाल का, बीएसएफ और जितने भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिशन, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। इस बच्ची का थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से ये थोड़ा सा কিসের দেওয়া হয়েছে? পাসের দেওয়া হয়েছে। আর কি বলেছে, 40 জন কি করছে, ফেল করছে। তাহলে মোট পরীক্ষার্থী কত? আমরা ভেন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে করব। ভেন ডায়াগ্রাম কেমন হয়? এক জায়গায় আমরা কি লিখছি, বেঙ্গলি, আর এক জায়গায় ম্যাথ। এটা কিসের ভেন ডায়াগ্রাম? এটা হচ্ছে তোমার পাসের ভেন ডায়াগ্রাম। তাহলে বেঙ্গলিতে কতজন পাস করছে? 65। ম্যাথে কত? 55। আর উভয় বিষয়ে কত? 40। তাহলে আমি যদি বলি বেঙ্গলিতে, অনলি বেঙ্গলিতে কতজন করছে? অনলি বেঙ্গলি যদি বলি তাহলে কত হবে? 65 মাইনাস 40, 50। এখানে কত হবে? অনলি ম্যাথ কত হবে? 55 মাইনাস 40 কত? 15। ঠিক আছে, একটু ভুল হলো, এখানে 25 হবে। 25 আর এখানে কত? 15। তাহলে 25, 40 অ্যান্ড 15 আমরা কি করব? দেখো ইজি আছে। ফার্স্টে আমরা কি করলাম? অনলি বেঙ্গলি, তারপরে
এটা কি বোথ, মানে উভয় বিষয়। তারপরে কি করছি আমরা, অনলি ম্যাথ। টোটাল কত হচ্ছে, টোটাল হচ্ছে 80। এই যে বলছি এটা কি 80% বা আউট অফ 100। আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে কি দেওয়া হয়েছে, বলছে 40, এই 40 জন এরা কি করছে, উভয় বিষয়ে ফেল করেছে। কারণ এই 40 জন কোথায় আছে, এই ভেন ডায়াগ্রামে নেই, তারা ভেন ডায়াগ্রামের বাইরে আছে। তাহলে ফেল আমরা লিখতে পারি, বাইরে লিখতে পারি ফেল। ফেল কত 20, মানে 40, কিন্তু এটা কত 20%। এই 20% ইকুয়াল টু আমরা কি বলতে পারি 40। তাহলে আমার কি চাওয়া হয়েছে কি টোটাল স্টুডেন্টস কত। তাহলে টোটাল স্টুডেন্টস কি করে ফাইন্ড আউট করছি, 40 কি বলেছিলাম, যেটা লাগবে সেটা কোথায় আমরা বসাবো, ওপরে। তাহলে 100/20 কত হচ্ছে, তাহলে টোটাল স্টুডেন্টস কত 200। গুরুত্বপূর্ণ পার্ট, এটা আমরা সবাই জানি। তো সেখানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা মৌলিক অধিকার, যেটা সংবিধানে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং এটা আমরা এর আগেও করেছি এবং আমরা সবাই জানি, যেটা হচ্ছে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য। মানে আমাদের যদি মৌলিক অধিকার খর্ব হয় তাহলে আমরা তার জন্য আদালত যেতে পারি। তো আমাদের মৌলিক অধিকার কটা আছে, কটা মৌলিক অধিকার, 6টা। 7 নম্বর কি ছিল, রাইট টু প্রপার্টি, সম্পত্তির অধিকার। সেটা পরবর্তীতে কি 44তম সংশোধনের মাধ্যমে সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং এটা এই মুহূর্তে লিগাল রাইট, মানে আইনি অধিকার। সেটা এই মুহূর্তে আমাদের আইনগত অধিকার হয়ে গেছে, এটার মৌলিক অধিকার নেই। তাই এটাই হচ্ছে মৌলিক অধিকারের সাথে লিগাল অধিকারের ডিফারেন্সটা, ঠিক আছে। এবার আমরা এক এক করে মৌলিক অধিকারগুলো কী কী আছে সেগুলো আমরা দেখব। তাই 1 নম্বর কি আছে, সাম্যের অধিকার, মানে রাইট টু ইকুয়ালিটি, মানে आईनेर चोख। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। मैं रिटायर्ड हवलदार विप्लव शाह मालदा डिफेंस फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मालदा डिफेंस फिजिकल एकेडमी मालदा डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में है और रोड हेड पे स्थित है। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, यहाँ मालदा डिफेंस फिजिकल एकेडमी का कोचिंग सेंटर है, जो जहाँ पर स्टडी कराया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी तैयारी है, जो भी सब्जेक्ट का तैयारी है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जीके, जो कुछ भी वो कम्प्लीटली यहाँ तैयारी कराया जाता है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने देखा मेरा फिज़िकल के बारे में, देखा फिज़िकल कैसा होता है। आज मैंने आपका जो है बहुत सारा लड़का लड़की जो है उसमें कमेंट्स करता है वीडियो में, सर आपका कोचिंग कहाँ होता है, कोचिंग सेंटर कैसे हैं, स्टडीज़ रूम्स कैसे हैं, सर वो बताइए थोड़ा सा। तो इसी मकसद से जो है आज मैंने वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। दोस्तों आपके समक्ष है, आपके सामने है, इस हिसाब से यहाँ पे कोचिंग कराया जाता है। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको अगर तैयारी करना है तो यहाँ पे आप आके आराम से आप तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल 100% आपको तैयारी कराया जाएगा, ताकि जो है आप कोई भी एग्ज़ाम में आप फेल ना करें। ठीक, इतना तो गारंटी है कि यहाँ पे अगर कोचिंग कर लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ आइए, यहाँ देखिए, बाहर को दिखाइए, यहाँ देखिए बिल्कुल मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड है। दोस्तों इसके बगल में चलो आगे चलो, इसका बगल में दोस्तों मालदा डिस्ट्रिक्ट का बहुत प्रसिद्ध स्कूल, जो कि बहुत फेमस स्कूल है, नॉर्थ पॉइंट इंग्लिश एकेडमी, जो ICSE बोर्ड का स्कूल है, बच्चों का है। तो इसके बिल्कुल जस्ट बगल में ही है और यहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आइए यहाँ पे, और आने के बाद आप जो है अपना तैयारी कर लीजिए। अभी हाल ही में मेरे यहाँ से स्टूडेंट 4 जो है स्टूडेंट है वो SSC एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसके बाद ग्राउंड भी क्लियर कर दिया है। और उससे पहले बंगाल पुलिस में 3 लड़की और 2 लड़का वो भी अपना प्रीलिम्स और ग्राउंड कंप्लीट कर चुका है, और अभी मेंस के लिए एग्ज़ाम हो गया है। नेक्स्ट इसका जो रिज़ल्ट है उसके इंतज़ार में है हम लोग। तो दोस्तों
आपसे कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ से आइए और आके अपना तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपको मालवा डिफेंस फिजिकल एकेडमी की तरफ से। जय हिंद।